जी, good morning class. In last classes we start chapter the fundamental unit of life, and I think I took two classes of this chapter. In first class we discussed about the discovery of the cell, definition of the cell, or you can say basic features of the cell. Next unicellular organisms and multicellular organisms. Okay. In next class we studied about the basic structure of the cell, that is plasma membrane, cell wall, composition of the plasma membrane, functions of plasma membrane, cell wall, what is cytoplasma. We study about these things. Okay. And today I am going to start the cytoplasm. फर्स्टली साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन आप लोग जल्दी कवर कर लीजिए, फिर से रिपीट कर रही हूँ. हाँ जी, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? Cytoplasm is a jelly-like substance, or you can say cytoplasm is a liquid that is present between the nucleus and plasma membrane. Between the nucleus and plasma membrane. Okay, मीनिंग की सोल्यूशन कंपोज ऑफ क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है साइटोप्लाज्म? वाटर, सॉल्ट, प्रोटीन्स दैट फिल्स द सेल. मीनिंग साइटोप्लाज्म फिल्स ऑल द सेल एंड द स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट scattered in the cytoplasm we call them cell organelles. We call them cell organelles, and these cell organelles perform all the basic functions of life. Meaning different cell organelles perform different functions. Now we are going to study about cell organelles, their structure, their function one by one. Okay, Razi? So firstly, and the first is Golgi bodies, or you can say Golgi bodies. Okay, Razi? Golgi bodies discovered by Camillo Golgi. This is the name of scientist who discovered the Golgi bodies. Okay, it is a system. Firstly, definition of Golgi bodies. What are the Golgi bodies? It is a system of, and it is a system of membrane bond vesicles called cisternae. जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो क्या है? membrane bond vesicles है. ये क्या है हमारे पास? वेसिकल्स है बॉन्ड में, और जो पूरा का पूरा क्या है? जो सिस्टरे बन रहे हैं मेम्ब्रेन से बॉन्ड होते हैं, वी कॉल इट गोल्जी बॉडीज. पूरे के पूरे नेटवर्क को हम क्या बोल रहे हैं? गोल्जी बॉडीज. अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, हाँ जी, तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले जो ये सर्कल स्फेरिकल शेप में दिख रहा है, दीज आर द वेसिकल्स. जो इस शेप में आपको जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये हमारे पास क्या है? सिस्टम. क्या है? सिस्टम. तो क्या है? ये पूरा नेटवर्क है जिसमें सिस्टम में और वेसिकल्स क्या है? क्लोजली पैक्ड है, एंड दीज आर द मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनाइज. मीनिंग किसी भी मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकती है और फ्री हो सकती हैं, आइदर विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आइदर विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आइदर दे आर इन फ्री फॉर्म. ओके राजे? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कहते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द Golgi bodies? Golgi bodies help in storage, modification and packing of cell products. जितने भी cell product, either food, either waste material, either any useful substance, Golgi bodies help in the storage, modification and packing of the cell products. So the function आपको सभी के क्लियर रखनी है. इवन मोल्डिंग से क्या है? फंक्शन पूछा जाता है मोल्डिंग क्वेश्चन में. तो क्या है फंक्शन? क्या है? इट इंक्लूड्स स्टोरेज. फंक्शंस में क्या इंक्लूड कर रहा है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ सेल प्रोडक्ट्स. कहते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द Golgi bodies. सेकेंड फंक्शन क्या आ गया हमारे पास? क्या है? जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं फ्रॉम द सिंपल, so the formation of the complex sugars takes place in Golgi bodies from simple sugars. Okay, next हमारे पास क्या है? It also involved in the formation of lysosomes. Third function क्या हो गया? It helps in the formation of lysosomes. Now what are the lysosomes? You know lysosomes are the suicide bags of the cell. We will study about lysosomes in next slide. Okay, so clear? Definition of Golgi bodies: cisternae and vesicles network,
सेकेंड आपके पास फंक्शंस आ गए, हु डिस्कवर्ड द गॉल्जी बॉडीज, हु डिस्कवर्ड कैमलियो गॉल्जी। देखो नेम के साथ ये कैमलियो गॉल्जी की तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट, आपको स्ट्रक्चर जो बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, यदि मैंने नोटबुक पे ड्रॉ करवाई हुई है आपको, सिंपल स्ट्रक्चर बिल्कुल देखिए ऐसे किया है। तो क्या है आपके पास पूरे नेटवर्क के साथ और क्या है जो वेसिकल्स ड्रॉ की, सिंपल स्ट्रक्चर होगा गॉल्जी बॉडीज। नेक्स्ट वन इज लाइजोसोम। अभी अपने वर्ड यूज किए थे ना, लाइजोसोम्स मीनिंग गॉल्जी बॉडीज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। वैसे व्हाट आर लाइजोसोम्स? लाइजोसोम्स क्या है हमारे पास? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोसोम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोसोम। कैसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, सेल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, मीनिंग उस स्ट्रक्चर के अराउंड क्या है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे मोस्टली क्या है, लाइसोसोम्स कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नाउ व्हाट आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स? Digestive enzyme means the enzymes that help in the digestion of the food, that help in the you can say breakdown of the materials. We call them digestive enzymes that can digest anything, either it is waste material, either it is food, either it is any part of the cell, meaning that helps in the breakdown of the substances. So it contains powerful digestive enzymes. enzymes कहाँ से बने हैं? मेड बाय आरईआर। जैसे आरईआर वर्ड जो है मुझे भी क्लियर कर दूँ, आरईआर क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने स्टडी किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज आरईआर, सेकंड वन इज एसईआर। तो आरईआर मीनिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन केस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर आर प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। If you have in mind, we study about all the types of the RER and SER, types of the endoplasmic reticulum. तो what is the function of digestive enzymes? जब हम बात कर रहे हैं कि जो digestive enzymes हैं उनका function क्या है, तो अब क्या function है इनका? To digest the bone or cell organelles, bacteria, etc. Any foreign particle that enter in the cell and any bone or particle of the cell, either they are cell organelles, either any other part of the cell, meaning they just digest the bone or cell organelles and other foreign particles that enter in the cell. Okay, next क्या है? कहते हम क्या कहते हैं कि lysosomes are known as the suicide bags of the cell. Suicidal bags of the cell, meaning why we call lysosomes as a suicide bag, or why we call them as a suicide bag? Suicide क्या होता है? वैसे जो खुद की जान खुद ले लेते हैं, दैट इज सुसाइड केस। ओके, देन इस केस में हम इसे सुसाइड बैग्स क्यों बोल रहे हैं? कहते हैं व्हेन एनी सेल गेट डैमेज्ड, सेल में क्या होते हैं? आपने सेल आप लाइसोसोम्स में, व्हेन एनी सेल गेट डैमेज्ड, लाइसोसोम्स में burst and enzymes digest their own cell, hence they called as suicide bags of the cell. No doubt. वैसे बेसिकली फंक्शन क्या होता है लाइसोसोम्स का? टू डाइजेस्ट बॉर्न और सेल ऑर्गेनाइज। इफ़ इन केस ऑफ एनी इंजरी, अगर कोई सेल हमारे पास क्या है डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो ब्रस्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो जो उसकी इंजाइम्स है जैसे वो बाहर आती हैं मेम्ब्रेन में से, तो वो अपना ही सेल क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। मीनिंग खुद को जिस घर में हम वो रह रहे थे, जिस सेल में वो रह रहे थे, उसी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई वी कॉल देम एज सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। सेल के क्या है? किसके सुसाइड बैग्स हैं? मीनिंग किसके सुसाइड बैग्स हैं? सेल के, बिकॉज दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल इन केस ऑफ एनी इंजरी, when the membrane of the lysosomes burst and they secrete digestive enzymes that digest their own cell. जैसे मोस्टली जो क्या है, इट इज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जो बेसिक फंक्शन है हमारे पास लाइसोसोम का वो क्या है? मीनिंग इट इज़ द वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल। जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, तो उसे क्या करेंगे? जे सेल में से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो उस चीज़ में क्या पूरे के पूरे प्रोसेस वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह क्या एक्ट करते हैं हमारे पास। वजह से आई थिंक लाइसोसोम इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया
power house of the cell. Okay, meaning firstly, what is mitochondria? Okay, we will study about the structure of mitochondria. Mitochondria is covered via double membrane. Sometimes कुछ confused और कुछ molding के साथ questions आ जाते हैं. Sometimes examiner ask what name any 2-3 cell organelles that have double membrane. कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, आपने स्ट्रक्चर क्लियर रखनी है. अभी तक जितना हमने स्टडी किया, फर्स्ट क्या आया है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड वाया डबल मेम्ब्रेन. सेकंड क्या आएगा, न्यूक्लियस में भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है. एंड थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट में भी हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है. वी विल स्टडी दीस सेल ऑर्गेनेल्स इन नेक्स्ट स्लाइड्स. हाँ जी, जैसे आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोर्स एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड creating a large surface area for ATP. जैसे what is full form of ATP? Adenosine triphosphate, meaning 3 फॉस्फेट लगे होते हैं ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल सिंथेसिस. क्या है सिंपली इस पूरी की पूरी जो मैंने लाइन अभी देखी है, इसका मीनिंग क्या है? जैसे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, तो सिंपली पोर्स होती है. पोर्स मीनिंग द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कैन टेक प्लेस. द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड और इधर से फोल्ड हुई होती है. ऐसे डीपली मैट्रिक्स में क्या है, वाई इट इज डीपली फोल्डेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. मीनिंग जितनी फोल्डिंग ज़्यादा होगी उसका जो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए क्या नीड है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP molecule. ATP meaning energy. रजे what I said, mitochondria is known as powerhouse of the cell. Power meaning they provide energy for doing various work. हर एक काम करने के लिए, स्टडी करने के लिए, मेरे को मॉर्निंग उठने के लिए, मेरे को वॉक करने के लिए, हर एक काम के लिए मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी. देन from where we get energy? You simply say food. But how we get energy from the food? Because food is digested, then energy is stored in mitochondria as a ATP. That ATP molecules are the source of energy for us for doing any activity or for doing any work. Then meaning next हमारे पास क्या कहते हैं, ATP is the energy currency. जैसे देखो एनर्जी करेंसी जैसे हम कहते हैं फोर्स किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में. प्रेशर किस में मेजर करते हैं, पास्कल में. मनी किसी कंट्री में डॉलर होते हैं, किसी कंट्री में रुपीज़ होते हैं, किसी कंट्री में पौंड होते हैं ना. सेम द एनर्जी की करेंसी क्या है हमारे पास, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. जैसे समटाइम्स वी यूज वर्ड ADP. ADP मीनिंग क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ADP क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. तो क्या है, सिंपली इस वर्डिंग में हमें बताया क्या है, कहते हैं ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एंड द माइटोकॉन्ड्रिया called as power house of the cell. Sometimes question may be like that, why mitochondria is known as the power house of the cell? You have to answer because mitochondria provide energy in the form of ATP for doing various activities. You can also explain this term how mitochondria provide an ATP. Synthesis takes place. Everything you can write. Next हमारे पास क्या है, कहते हैं mitochondria have their own DNA. Again one more thing, meaning what is DNA? सिंपल में बात करूँ तो DNA क्या होता है आपके पास, हेरिडिटी मटेरियल होते हैं. जैसे DNA हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. DNA क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मीनिंग दैट इज हेरिडिटी मटेरियल. Further DNA consists of chromosomes. ठीक है, then chromosomes are genes that help in the transfer of characters है ना from one generation to the second generation. We include it as a genetic material. Then meaning जो mitochondria है, meaning that DNA can help in the replication also. मीनिंग उसकी तरह और बहुत सारी कॉपीज़ बनाने से सारी DNA की डिटेल स्टडी अभी हमारे को नहीं है. नेक्स्ट आपकी फर्दर क्लासेस लाइक +1 में है तो वहाँ पे हम करेंगे. तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन राइबोसोम्स. Anyway, word ribosome present as a ribosome meaning it helps in the protein synthesis. Ribosome meaning it helps in the protein synthesis. I think we studied about the ribosomes in case of endoplasmic reticulum. Na rough endoplasmic reticulum contains ribosomes on its surface and that helps in the synthesis of proteins, or you can say ribosomes act as the protein factories. You can also say it कि ribosomes act as a protein factories because ribosomes helps in the formation of proteins.
सो रजे इधर ध्यान रखना है, न्यूक्लियस हैव इट्स देयर ओन डीएनए and mitochondria also have its own DNA, and third one that have its own DNA is chloroplast. We will study it in the next class. Okay Raje, so function of mitochondria I think clear है, provide energy. structure आपको draw करनी होगी, clear है, हमें पहले से basic structure clear होगी. double membrane है, inner membrane is folded and it have its own DNA and ribosome. फर्दर लेके अगर थोड़ी सी बात कर ले वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे देखिए आपने बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, आपने सिंपली स्ट्रक्चर को नहीं रखना है. ओके, तो क्या है जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, फोल्ड हुई है. जो इनर मेम्ब्रेन में लिपिड मटेरियल होगा वो कॉल इट मैट्रिक्स. क्या बोलेंगे अगर साइटोप्लाज्म को, इन साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स. तो आउटर मेम्ब्रेन को हमने क्या नेम दे दिया, जैसे आउटर मेम्ब्रेन इनर को क्या दे दिया हमने, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हुई है उसे हम क्या नेम देंगे, क्रिस्टे. क्या नेम देंगे, क्रिस्टे. CRISTA, क्रिस्टे. फिर ऐसे उसके बाद जो इसमें स्मॉल स्ट्रक्चर्स हम दिखाएंगे, क्या प्रेजेंट था, अपना राइबोसोम प्रेजेंट है तो राइबोसोम शो करेंगे. एंड एक जगह हम क्या करेंगे, एक ऐसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसमें से थ्रेड दिखा कर क्या शो करेंगे, DNA मीनिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. जितना हमने स्टडी किया रहा से उतना ही हमें डायग्रामेटिकली क्या है शो करना होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. मेक श्योर डायग्राम्स आर मस्ट इन द बायोलॉजी. ओके रजे, hope so you understood today's topic. If you face any problem now you can message me. Okay Raja, thank you. Next cell organelles we will study in the next class. Have a good day.